Hello, students. Welcome again. This is the last part of agriculture chapter. We are going to just discuss about it. One topic was left, that is your non-food crops. Let's discuss. The first one is your rubber. Rubber, as we know, it's an important integral material for various other industries, and its manufacturing is very much important for any nation. And India ranks fifth among the world's natural rubber producers. What are the conditions? Let us talk about it. As it is an equatorial crop, it requires special conditions. यानी कि या तो वहाँ पर ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल एरियाज होने चाहिए, यानी कि वहाँ टेम्परेचर हाई होगा, ह्यूमिड होगा और रेनफॉल भी अच्छी होगी. द टेम्परेचर शुड बी अबव 25 डिग्रीज. और एरिया ऑफ कल्टिवेशन इज़ मोस्टली इन आइदर इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में हमें बहुत से एरियाज मिलते हैं, प्लस योर ईस्टर्न इंडिया जिसमें आएगा आपका केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, एंड देन योर गारो हिल्स. Garo Khasi Jayantiya we have been talking about in class 9 climate chapter also. It's a very important hill ranges there in the eastern India. Then comes your fiber crops. Fiber crops are also very important, and usually we make cloth out of it, and garment industry is directly affected by its production. The most important five marker caution is mostly either of cotton or jute. We'll be discussing that also. And the temperature conditions as well as the crop condition, season, rainfall, all these things should be very clearly learned by heart because they can land up in one marker question as well. प्लस दे कैन बी अ टेल क्वेश्चन, यानी कि आपसे पहले डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ऐसा वाला जो भी क्रॉप है वो कौन सा है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट, अगर हम कहें कि कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो किया जाता है, इट्स अ फैक्ट. सो इट कैन बी आस्क्ड एज विच क्रॉप इज़ ग्रोन इन डेक्कन इंडिया ऑन ब्लैक सॉइल. तो इट विल बी एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, प्लस details of this type of crop can be asked regarding weather, rainfall, temperature. So 1 marker plus 4, that can be 5 marker question, and it will be according to your tail question, indirect tail question. यानी पहले आपसे पूछा जाता है indirectly और उसी के ऊपर based आपका rest 4 marker होता है. So let us talk about this crop. Cotton is one of the main raw materials for cotton textile industry, and it is the third largest producer of cotton in the world. Conditions required for the crop. Crop grows well in the drier parts of the black cotton soil of the Deccan. And very important information usually asked for: high temperature is required, light rainfall, and 210 days which should be frost free, and bright sunshine is required. It's a kharif crop, and areas is your Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh. Jute. It is known as the golden fiber, and the indirect question is asked this way only: which is the golden fiber, and they give a detailed account of it, all the features about that crop. किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है. And of course it is used for making gunny bags, mats बनाए जाते हैं, ropes, yarns, carpets, and the cost is high, so it is very easily now replaced by your synthetic fibers क्योंकि synthetic fibers reasonable होते हैं, and their life is also more, especially in packaging industry, because jute is not able to hold moisture, as well as a lot of porous material it is. So उसकी वजह से नायलन और सिंथेटिक फाइबर्स ईजिली इसे रिप्लेस कर चुके हैं. बट स्टिल handicraft industry as well as few areas we find still jute very popular, and only in India, that's your Sundarban Delta and some of the areas of Bangladesh, they have been the topmost areas of the world जहाँ पर आपको जूट की प्रोडक्शन बहुत अच्छी मिलती है, बिकॉज़ यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है और मॉइस्चर बहुत है, पानी की अवेलेबिलिटी अबंडेंट है,
और इनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है थ्रू इनलैंड वाटरवेज एज वेल. So the areas becomes your West Bengal, Bihar, Assam, Orissa, Meghalaya. So these are the major areas for jute producing states. Very, very important 5-marker question. It was last year also in the paper, board paper. Let's talk about it. This is the जो भी हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल हो सकते हैं या कुछ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं जिसकी वजह से हमने फूड प्रोडक्शन को बेटर किया है और पुअर को इंश्योर किया है कि दैट दे आर एबल टू एक्सेस द फूड ईजिली एंड इट इज़ अफोर्डेबल ऑल्सो. इसमें देखिए सबसे पहले है व्हाट वाज द नीड. बेसिकली कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड वाज मेकिंग द लैंड बैरन. जो लैंड थी वो उसमें इतनी फर्टिलिटी बची ही नहीं थी ओवर यूसेज होने की वजह से, जिसकी वजह से उन्हें बताया गया था कि नेचुरल फर्टिलिटी को रिटेन करने के लिए फर्टिलाइज़र्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए. फॉर एग्जांपल लेटरेट सॉइल में भी यही बात कही जाती है कि अगर लेटरेट सॉइल है तो एक्सेसिव वॉशिंग इज़ देयर ऑफ द सॉइल, तो फर्टिलाइज़र्स ऐड किए बिना वहाँ पर प्रोडक्शन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है या उसका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आता है. एंड पॉपुलेशन वॉज ग्रोइंग वेरी फास्ट. पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी तो वी रिक्वायर्ड. और बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इंडिया जो है अमेरिका से वीट इम्पोर्ट करता था. ही वॉज पिकिंग अप थिंग्स विच वर नॉट करेक्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, क्योंकि बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता था. टू अवॉइड दैट एंड मेक्स वन सेल्फ सफिशेंट. सेल्फ सफिशेंसी हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अटेन की. एंड फेमिन्स, ड्रॉट्स, डिज़ास्टर्स ये बहुत ही कॉमन थे बिकॉज इंडियन एग्रीकल्चर वॉज टोटली डिपेंडेंट अपॉन मानसून. सो इन सब चीज़ों को कवर अप करने के लिए हमने जो है रिफॉर्म्स बहुत ही एसेंशियल थे एंड इट वाज रिक्वायर्ड वेरी डियरली. बहुत अच्छी तरीके से उस पर थॉट करने की ज़रूरत थी और उसको इम्प्लीमेंट करने की भी. So let us talk about the reforms. कलेक्टिव फार्मिंग इंट्रोड्यूस किया गया बिकॉज कलेक्टिव एंड कोऑपरेटिव बैंकिंग, फार्मिंग, ये सब चीज़ें क्या हैं, दे ऑल ऐड अप टू द इनपुट्स को ऐड करती हैं और अपना बेनिफिट क्रिएट करती हैं फॉर द वॉल्यूम. अगर हमारा छोटा स्केल होगा किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन का तो आप उसमें टेक्नोलॉजिकली चीज़ों को ऐड नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल एक प्लांट एंड मशीनरी है, अगर आपके पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपने इन्वेस्ट ही नहीं करना है तो आप एक पूरा इतना बड़ा मशीनरी थोड़ी ना लोगे 10 लाख की. या अगर आपका लैंड पीस बहुत छोटा है तो आप उस छोटे से लैंड पीस के लिए ट्रैक्टर परचेज नहीं करोगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू इवन गिव द मनी फॉर दैट. तो उस चीज़ को अगर कलेक्टिवली किया जाए, मान लीजिए 10 फार्मर्स इकट्ठे मिल कर के एक ट्रैक्टर ले लेते हैं और तीनों अपने लैंड पर ट्रैक्टर को टर्न वाइज यूज़ करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्केल होने की वजह से कलेक्टिवली सब मिलके उसका बेनिफिट भी ज़्यादा ले सकते हैं. प्लस बेनिफिट के साथ साथ उसको पे करना भी उनके लिए इजी है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट आते ही वो अपना EMIs या वट एवर द वे दे हैव यूज्ड उस मनी की जो अमाउंट है वो वापस कर सकते हैं. ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया था बिकॉज मोर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड वॉज अकरिंग बिकॉज ऑफ दिस एंड लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लैंडलेस फार्मर वॉज बिकॉज ऑफ ज़मींदारी सिस्टम. लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे और साथ ही साथ कोशिश की गई थी लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करने की. जो छोटे छोटे फ्रैगमेंटेड लैंड थे उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी. प्लस टेनेंसी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे कि जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी उन सभी के लिए लैंड सीलिंग क्रिएट की गई थी. ऑल्दो ये पूरी तरह से इफ़ेक्टिव नहीं हो पाया क्योंकि जिनके पास ज़्यादा लैंड थी उन्होंने अपने रिलेटिव्स या सम अबाउट इधर उधर करके पर्सनल इंडिविजुअल लैंड ओनिंग जो है वो उसको काफ़ी डाउन कर लिया था. बट स्टिल इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड कुड प्रोड्यूस सम इम्पैक्ट. Of course, Green Revolution has been an impact which actually has put up India to self-sufficiency in food grains. And White Revolution, which is the Operation Flood, 1-marker question, where we could increase milk production and all the related dairy products. It was an effective measure. Let us talk about features of comprehensive land and development.
किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए जिससे कि इजीली वो अपनी इनपुट्स खरीद सकें और तब अपनी पेमेंट्स के लिए एकदम उन्हें परेशान ना होना पड़े। और लोन अमाउंट के लिए अगर उनके पास मॉर्गेज ना भी हो तो क्रेडिट कार्ड्स, किसान क्रेडिट कार्ड्स उनको दिए गए। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स दी गई पायस, बिकॉज इससे क्या हुआ कि उनको अगर कोई ऐसा इशू हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इन दैट केस दे वर बेनिफिटेड विद दैट। Special weather bulletins and agricultural programs for farmers were introduced in the radio and television. रेडियो एंड टेलीविज़न के थ्रू, वेदर बुलेटिन्स के थ्रू फार्मर्स को पहले से बताया जाता है कि मॉनसून कैसा रहेगा, वाटर अवेलेबिलिटी कैसी रहेगी, कब तक उनको अपने सीड सो करने चाहिए। वो सारी एक्सपेक्टेड बिहेवियर एंड साइकिल ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसको काफ़ी हद तक कंपनसेट और हेल्प करने की कोशिश की जाती है थ्रू दीज वेदर बुलेटिन्स। And this is all about your agriculture chapter. I hope you all have understood it, and if you wish to, you can watch all rest 3 parts also. This will give you a complete understanding of the chapter. I hope this video has been again helpful to you all. Bye for now.